Hi everyone, I'm Diksha and I'm back with episode 2 of Did You Know series, your go to series to amazing healthcare tips. So, today we are going to discuss the amazing and very fascinating position called as the Trendelenburg position. So, Trendelenburg position is the position where the patient is lying on supine position on its back. That means the patient is lying on its back with his legs elevated higher than the head. That means that the legs are at an angle higher than the head. That is, the head is tilted downwards and the legs they are elevated upwards at an angle of 5 to 30 degrees. So now let me tell you why this position is so amazing, or what makes this position so amazing, the powers of this position. First of all, it will help, or it helps to improve the circulation of the blood back to the heart and to the brain in case of stroke, and in case of stroke and also in case of hypotension, which are serious medical emergencies. Now let me tell you how it happens. For example, imagine yourself pouring sand into a bottle that is positioned upwards straight. ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास एक बॉटल है, उसको हमने ऐसा स्ट्रेट रखा हुआ है एंड वी आर ट्राइंग टू पोर सैंड उसके अंदर ना. जब आप उसको डायरेक्टली ऐसे स्ट्रेट पोजीशन अपराइट पोजीशन में वो बॉटल है एंड देन यू आर ट्राइंग टू पोर सैंड उसके अंदर, सो दैट सैंड इज गोइंग टू टेक मोर टाइम टू फिल दैट वाटर बॉटल, है ना. तो in order to fill up that bottle with that sand faster, क्या करते हैं हम लोग, उसको टिल्ट कर देते हैं. तो अगर टिल्ट कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि सैंड जो है वो जल्दी जल्दी फिलअप हो जाएगा. ठीक है, फास्टर. सिमिलरली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे हमने पेशेंट को टिल्ट करा हुआ है, उनका हेड जो है वो डाउनवर्ड्स है एंड लेग्स जो है वो एलिवेटेड है. नाउ सिंस द पेशेंट इज टिल्टेड, उनका हेड जो है वो टिल्ट हुआ है और लेग्स एलिवेट हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड है वो वापस जो है बैक टू द हार्ट एंड टू द ब्रेन, तो वो क्या होगा, जो वाइटल ऑर्गन्स है हमारे वहाँ पर वो और जल्दी जल्दी जाएगा. इट विल गो फास्टर एंड हेंस इट विल इम्प्रूव द कंडीशंस लाइक स्ट्रोक एंड हाइपोटेंशन. तो ब्लड प्रेशर्स वगैरह को, अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर है या किसी का ब्लड प्रेशर एकदम रिड्यूस हो गया है, तो फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट to do is to elevate the legs of the patient. क्यों? क्योंकि because जो blood है that is the venous return जो है वो improve होगा. The blood will go back to the heart faster, thus improving the patient's condition. Now the second benefit of this position is that it will help in dislodging of the air bubbles in case of procedures like central venous insertion. Now sometimes what happens, like when we are inserting central lines in the patients, so the air bubbles are formed and these bubbles are highly fatal for the patient and they can be very dangerous for the patient's condition. Now इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ये पोजिशन एयर बबल्स को डिसलॉज करने में हेल्प कर रही है. तो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, अब अपने आप को इमेजिन करो कि आपके पास में एक ग्लास है और उसके अंदर एक स्ट्रॉ रखा हुआ है. अब उस स्ट्रॉ से आप क्या कर रहे हैं, बबल्स को ब्लो कर रहे हैं. ठीक है, अब जब आप बबल्स ब्लो करते हैं तो क्या होता है, द बबल्स दे राइज अपवर्ड्स. क्यों? क्योंकि वो लिक्विड से लाइटर है ना. सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों, जब आपने पेशेंट को टिल्ट कर दिया तो क्या हुआ, ब्लड वापस जा रहा है. अगर सेंट्रल लाइन इंसर्शन कर रहे हैं, आपने पहले से ही प्रिकॉशनरी पेशेंट को क्या करा हुआ है, एक ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन दिया हुआ है. नाउ अब इस पोजीशन में पेशेंट है एंड फॉर एग्जांपल एयर बबल्स आर फॉर्मिंग. नाउ सिंस दीज बबल्स जो है इनका जो वेट है इट इज़ लाइटर देन दैट ऑफ द ब्लड, दीज विल राइज अप इंस्टेड ऑफ गोइंग back to the heart and to the lungs or to the brain and thus causing fatal and life-threatening position for the patients. So this is how it is important to dislodge air bubbles when it comes to procedures like central venous line insertions. The third and the most important benefit of this position is that it is often used by surgeons in case of abdominal surgeries or gynecological surgeries.
नाउ लेट मी टेल यू हाउ. नाउ फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर बहुत सारा क्लटर हुआ है एंड यू हैव टू वर्क उस टेबल के ऊपर. नाउ इन ऑर्डर टू वर्क व्हाट विल यू डू दैट यू विल शिफ्ट दैट क्लटर. जब आप उस क्लटर को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास में एम्प्टी स्पेस बच जाएगा. नाउ वो स्पेस जब आपने क्या करा, उसको शिफ्ट कर दिया, आपने अपने टेबल को टिल्ट कर दिया, जो सब गंदगी था, जो क्लटर था, वो क्या हुआ, एक साइड पे आके शिफ्ट हो गया. अब आपके पास में स्पेस बन गया काम करने के लिए. नाउ सिमिलरली जब आप ट्रेंडल-एंड-बर्ग पोजीशन पेशेंट को दे रहे हैं, क्योंकि आपने पेशेंट को टिल्ट कर दिया, तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी जो ऑर्गन्स हैं हमारे वो स्लाइटली मूव कर जाते हैं अपने पोजीशन से, नॉट ड्रास्टिकली, स्लाइटली, मेकिंग स्पेस फॉर द सर्जन्स टू वर्क, मेकिंग दैट सर्जिकल एरिया मोर एक्सेसिबल एंड मोर विजुअल, ज़्यादा दिख पाता है अच्छे से एंड उनको ज़्यादा अच्छे से एक्सेस हो पाता है. सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू सी अ bed that is tilted, it is not that somebody is trying to fix that bed. It may be that the patient is given a Trendelenburg position and we are trying to save patient's life. Though it is highly contraindicated in certain conditions like head injuries or any conditions where intracranial pressure is increased. Secondly, also in case of high intraocular pressures, in case of glaucoma. Third, in case of pre-existing cardiovascular conditions, cardiovascular and pulmonary conditions, and also in obese patients. I hope it helped. Stay tuned for more such tips.